I am your host Salim bin Mohammed Rafi. This is my YouTube channel Samir Universe. Why you must be careful of the injured lion or snake, and at the moment trapped, surrounded from all sides with all the ammunition of the world, with knives, with daggers, with drones, with missiles, with little, even his arms amputated, his legs amputated, his eyes out of the ball taken out, is Netanyahu. Netanyahu, one of the cruelest men, the man one single-handedly destroyed the peace in the Middle East and in the whole world, is responsible for, you can see, the settlement, and now this beast, this pig, this the most despicable, dirty, filthy and foul person who has no right to even breathe for a single one more second, is want to now grab another 30 kilometers of the Palestinian land in West Bank. How dare you, damn it, you do it when you are dying. So look at it like a dying snake and like an injured animal. Before he dies and goes into the grave, when gracefully everybody spits on him or is hanged by his neck till his neck comes out of his body and falls on the ground. Whether International Court of Justice does it or International Court of the crimes they commit, or the human beings, or even the, at the moment, I think that what is going to happen is his own army, his own chief of army staff, air force, naval staff, and his own people in the Palestine, they are going to, I think, take even small, tiny pieces out of his body, and there will be nothing in his grave except empty bones. So if when Hamas or if Hezbollah or any Islamic State or any resistance exists, you know, they trust him, that they is the fools of the world. Bitten once, you should be careful twice. This man or this nation or these Jews, ever since they came into existence, they never, ever, ever should be trusted. Imagine what they did in Khyber to our Holy Prophet of Islam, peace be upon him. They made a pact with him and a deal that they will let them know, and they will never let the Quraysh or the enemies of the Prophet to come from Mecca and attack. But what they did, they not only allowed them, they aligned with them and they attacked. I think it was the fortune, good fortune of the Prophet, peace be upon him, and the help of Almighty Allah, that the war of Khandak, that he dug up a big canal, so that none of the horses or of those enemies from traveling Mecca with the help of the Khyber Jews could come to Medina and harm them. And so the result was that they were all either fell into the ditch and died, or they were killed. And then the whole of, do you remember that, then the Jews living in Khyber were killed by the decisions of their own elders. And that's exactly what is happening now in Israel, that the whole of population wants to kill Netanyahu and his wife and his children, so that nobody is alive. And those two, I don't want to use even, the word bastard, because even that is not enough for them. That is both the interior minister and those two other, the extremists who say that we will bring you down, your government, if you stop the war. Damn you, you will be hanged by your own people. They'll eat you raw. All three of you will be eaten raw, I can tell you, and I hope on God that Hezbollah never stops. It does not let any hurdle in the way of the Taliban, in the way of the Houthis, in the way of hundreds and thousands of people from Iraq, from Syria, even from Taliban and Afghanistan, and even some, I think, up hills, mountains of Pakistan, India, Malaysia. This is the first time that the whole Muslim nation is now eat them raw, and this is what they deserve. This is, and unfortunately, what's going to happen is when this dirt, filth is eaten up, then the good Jews, which we should be there, which are respected, which are don't want to fight, and imagine, look at the people, they are resigning.
Look at that, the American, such an intelligent person who, such a very high post, he resigned and told you the inside story of what they wanted. That look at those young IDF who say that they want us to kill the innocent, Gaza women and children and the elderly, and that hurts us. So they refuse to fight. So how ugly that is, this trio, you can understand. And you have to take hats off to the chief of army of at the moment, the Israeli and Air Force and Naval, who refuse to fight. And you must also appreciate all the Jews who are Orthodox, and they don't have anything to do with the war. This is the dirt and filth of this man. They want to live in peace with Muslims, and they can set with just a token, Palestinian Arabs, Muslims in the cabinet. They have no rights. They can't even speak. They can't even protest. And look, on the other side, they want to now grab the whole of West Bank. And what kind of justice this is? And I think they spit on the face of the whole humanity who tolerated such a massacre, such a genocide, such a war crimes. And now I think they deserve it. And in fact, if you put on the two sides of the scale, the whole of Tel Aviv, Haifa, Eilat, they should be completely leveled and destroyed with no health facilities, no gas, no water, no ambulances, no nothing. So that then alone the Jews will learn that how it hurts when you do it to the others. It is still time, and all those stupid, I think they must be crazy who are there in settlers still before they are roasted and burnt like into the oven. And that's what is going to happen to them if they stick there and stay in the settlements. It's a time for you to quit. Leave now. Don't you see what's happening to you? So fire, fire, fire all around you. The ring of fire is going to burn you to ashes. के तमाम जहां स्टोरेज पड़ी है, ये लॉन्चिंग पैड है, डिफेंस सिस्टम है, फलाना जो कुछ भी है उसको उड़ा देंगे। अब उसका जवाब दिया हिजबुल्लाह ने। उनके इंजीनियर्स ने 18 साल की मेहनत के बाद इस तरह के लॉन्चिंग पैड और चीज़ें बनाई हैं जो जंगल से, मिसाल के तौर पर, अब होता क्या है कि इजराइल के, आपको पता है कि बॉर्डर के साथ लेबनान का लगता है, वहां पर जंगल नुमा एरिया है, किरियात शमूना और दीगर जगह, ये वहां पर जाएंगे और वहां से जमीन से अचानक किसी जगह से निकलकर ऐसे जमीन को फाड़ेंगे और उसके बाद वो मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स यानी पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देंगे। इतने रॉकेट, इतने मिसाइल मारेंगे, मार मार कर उनका भुरकस निकाल देंगे। अब उस सूरत हाल में होता यह है कि इजरायली एयरफोर्स देखेगी या वहां पर सर्विलेंस जो करें कि नीचे यहां पर है, अच्छा चलो यहां पर जाकर मिसाइल मारो। जितनी देर में वो करेंगे वो 3-4 सेकंड के अंदर फौरी तौर पर अपना यानी जो कैप है उसको बंद कर देंगे और एच समझ ले जिस तरह वो होता है सबमरीन का, उसी तरह का ये सिस्टम इधर है। उन्होंने बंद किया, जमीन का वो हिस्सा, वो टुकड़ा आया और उसके बाद ऊपर लगा और वो पूरी लेवल हो गई जमीन, पता भी नहीं चला नीचे कोई चीज है या नहीं है, और उसके बाद वो आगे मूव करके। अब आप ये सोचें कि इजराइल के इंजीनियर्स और इनके तमाम लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ, ये तो हम जंग नहीं लड़ सकते। आप जंग में जब भी जाते हैं, देखिए ये काम ना अमेरिका कर सका, ना ये काम चाइना कर सका, ना ये काम यूरोप के कोई यानी मुल्क कर सका, ये दुनिया के बड़े बड़े ममालिक नहीं कर सके। अब आप ये सोचें यूक्रेन की जंग के अंदर अगर रूस को ये बात पहले पता होती कि हम ये काम भी कर सकते हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि उनका कई दफ़ा, आप जानते हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम भी तबाह हुआ है, उन्होंने इनका भी तबाह किया। दुनिया में होता ये है कि आपको डिफेंस सिस्टम लगाना पड़ता है, जैसे आयरन डोम है, अब आयरन डोम की बैटरीज हैं, उनको तबाह वो कर रहे हैं। ये चीज़ तो इसराइल के दिमाग में भी नहीं आई कि यार ये भी काम हो सकता है। अब लेट से उनके दिमाग में ये आ गई है, लेकिन उसको बनाते करते कितने साल चाहिए, और जो हालत है इस वक्त लड़ाई की, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, वो तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त इसराइल का जो सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि इनको इस बात का इदराक ही नहीं हो पा रहा, इनको ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि अब हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। अब सबसे बड़ा मामला ये है कि वो जो तमाम की तमाम इन्होंने साइट्स मार्क की हुई थी कि यहाँ पर जाएंगे, ये सूरत हाल होगी, यहाँ से हम इनके रॉकेट लॉन्चर तबाह करें, यहाँ से मिसाइल सिस्टम, सारे का सारा प्लान फेल हो गया। क्योंकि आप ये देखें ना, नीचे आपने देखे दो तरह के, एक फिक्स है और एक है मूविंग रॉकेट लॉन्चर और ये लॉन्चिंग पैड जो है।
आप उसको जेरे जमीन मूव करवाते जा रहे हैं। आप इसराइल के बॉर्डर पर जाकर आप मिसाइलों की बरसात करते थे। आप सोचें, इस तरह के आपने कोई 100-200 बना लिए छोटे छोटे, उन्होंने चारों तरफ से आप पर बरसात की। और जब बरसात की तो उसके बाद पहली तो बात, आपका बचेगा कुछ नहीं। फिर उसके बाद उनकी जानिब से वो हमला करने के लिए आए कि अच्छा जी हम इनको तबाह करते। तबाह करने के लिए वो सारे जेरे ज़मीन चले गए। वो ऊपर से तमाम ज़मीन का जो हिस्सा है वो लेवल हो गया। अब जंगलात के अंदर आप देखें, आप करेंगे, आप वहाँ पर कैसे तबाह कर सकते हैं? और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप जितने मर्जी मिसाइल मारते हैं, जितने मर्जी जेरे ज़मीन वो अंदर तक चले जाते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पर होता। वो फिर वहाँ से सही सलामत बाहर निकलेंगे, मारेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये जंग की जो सूरत हाल है, उसने इजराइल के एयर चीफ को, उनके आर्मी चीफ को, नेवल चीफ को, उनको बता दिया कि भाई हम ये जंग नहीं लड़ सकते। इसीलिए हो सकता है, देखिए अब तो हिजबुल्लाह ने तमाम चीज़ें जारी की हैं, लेबनान ने, लेकिन हो सकता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये बात पहले से ही पता चल गई हो। रिसेंटली समटाइम ऐसा होता है कि वो दुनिया को दिखाने की बजाय उनको भी भेज देते हैं। अब सोचो उन्होंने क्यों ये दिखाया। उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया है कि आप जिस जंग में कूदने वाले हैं, उस जंग के हम बादशाह हैं, मालिक हैं हम इस शहर के, हम मालिक हैं इस पूरे खित्ते के, आप लड़ाई नहीं कर सकते। अब सोचे हुआ ये है कि डेविड बर्निया जो मुसाद का चीफ है, उसको हंगामी दौरे पर दोहा भेजा है, और दोहा भेजा है इस वक्त कि वहां पर जाओ और जाकर मामला तय करो। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सारे सिनेरियो में एक मीटिंग हो। يستمر هذا التدريب إلى أن يبلغ الشبل عامه الثاني، وعندها سيصبح مقاتلا شرسا، وسيكون قادرا على الصيد والقتل بدم بارد. لكن مهلا، فشبل واحد فقط من كل 5 أشبال يمكن أن ينجو ويعيش ليصل إلى هذا السن. أما الأشبال 4 الباقية فستقتل دون رحمة، سواء من الضواري الأخرى أو من العواشب الضخمة. إليكم 5 حيوانات لن تتردد في استهداف أشبال الأسود عن عمد لأسباب عديدة سنتحدث عنها. فدائما ما تهاجم بأعداد كبيرة، ولن تتردد في استهداف الأسود المصابة أو المريضة، كما أنها لن تفوت أي فرصة لقتل نسل الأسود. نافسين. عصابات الضباع تفعل هذا لإظهار الهيمنة والتفوق، وما إن تأتي اللبؤة لتتفقد الأشبال حتى تجدهم قد فارقوا الحياة. الحيلة البالغة، ومهما كان الثمن فستحصل الأسود على وجبتها لا محالة. لكن هذا لن يمنع الأسود من التفكير كثيرا وإجراء الحسابات قبل الإقدام على استفزاز هذا الضخم. فالفيل الإفريقي قوي للغاية، وإذا كنت محظوظا لمشاهدة هذا العملاق عن قرب فستندهش حتما من ضخامة الفيل ومدى قوته. فالأسود تدرك جيدا أن استفزاز الفيل لن يمر دون رد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये मनाजिर इतने ख़तरनाक हैं, इन्होंने इसराइल के जर्नैलों की, उनके तमाम लोगों की चीखें निकाल दी। आप ज़रा गौर से देखिए, ये 18 साल की मेहनत के बाद उन्होंने बनाए हैं ज़ेरे ज़मीन में लॉन्चिंग पैड। अब होता क्या है, ये बड़े हैरान कुन है, ज़मीन के किसी भी हिस्से से ये बाहर निकलता है लॉन्चिंग पैड, वहां से निकल कर ये रॉकेट मारते हैं, मिसाइल मारते हैं, यानी डिफरेंट तरह के। और उसके बाद जब दुश्मन देखता है कि यहाँ पर सर्विलियंस से सब कुछ हो रहा है, यानी उसके बाद हम यहाँ पर इनको हमला करेंगे, तो वो बटन दबाते हैं, वो फौरी तौर पर अंदर चला जाता है। और अंदर जाकर उन्होंने सुरंगें और न जाने क्या कुछ बना दिया है कि वो अंदर ही अंदर मूव करके ना, यानी एक जगह पर नहीं होता, ये मूविंग लॉन्चिंग पैड है। अब ये वो जंग है जो इसराइल के तमाम इंजीनियर्स फेल हो गए हैं, उनके तमाम एक्सपर्ट्स फेल हो गए हैं। अब हुआ ये है कि तब उन्होंने ये मनाजिर जारी किए हैं कि जब इसराइल में ये चीज़ डिस्कस हो रही है, उनका आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ ये कह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते। और उसके बाद उन्होंने हमास को कहा है कि भाई आप हमें बातचीत करें और मामला हल करें। अब ये करते क्या है, ये इतने खतरनाक है कि आप ये सोचें कि अभी इजराइल ने कहा था कि हमने प्लान ये किया है कि हम जाएंगे और 100 स्ट्राइक करेंगे,
उन्होंने कहा जी 100 स्ट्राइक करेंगे और 100 स्ट्राइक करके इनके तमाम तारीख की इससे बदतरीन इजराइल को शिकस्त कोई नहीं हो सकती। आप ये कहेंगे कि 1500 बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह कर दी, 50,000 बंदा मार दिया, लाखों बेघर कर दिए, तो फिर क्या? देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये था कि इन्होंने प्लान ये किया था पूरा मुल्क लेंगे, लेबनान लेंगे, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करेंगे, इराक शाम लेंगे और तुर्की भी लेंगे। अभी तक तो ये प्लान था, तो बताएं कि अगर आप मिडल में छोड़ देते तो उसके बाद क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो उनके आर्मी चीफ ने कहा है कि हैंड ओवर आपको करना पड़ेगा। याद रहे वहां पर हमास की हुकूमत थी, ये बात आप याद रखिएगा। वहां अब दोबारा रीबिल्ड होगा। प्लान इनका था कि अगर हम वहां पर पूरा इलाका ले लेते, इन्होंने कहा था 2000 साल बाद हम यहाँ पर आए, अगर डील ये फाइनलाइज हो जाती तो उसमें क्या है, 2000 साल बाद हम यहाँ पर आए हैं और हमने ये इलाके लेने हैं। वो तो यहाँ पर अपनी फ्यूचरिस्टिक सिटी बना रहे थे। आपको पता है सऊदी अरब नियोम सिटी बना रहा है, और वो ऐसी यानी जगह है कि दुनिया ने ख्वाबों ख्याल में भी नहीं सोची कि ऐसा कोई शहर भी हो सकता है। तो वो कह रहे थे कि हमने उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर यहाँ पर बनाना है, क्योंकि उनको इलाका चाहिए। देखिए पुराने शहरों को तो आप तबाह करके नया शहर तो नहीं बना सकते, वो तो आपको जीरो से करना पड़ेगा। इन्होंने कहा था कारपेट करके बिल्कुल 0/0 लेवल करके उसके बाद नया शहर यहाँ पे तमीर करवाएंगे, और जो दुनिया में हमारे लोग रह गए उनको लाकर यहाँ पर बसाएंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। ये असल में इनका सिनेरियो था सारे का सारा। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर यहाँ पर कोई डील फाइनलाइज हो जाती है या कोई सूरत हाल हो जाती है तो फिर इससे बढ़कर इनकी शिकस्त क्या होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसमें फिर सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ये असल में समझेंगे कि हम वक्ती तौर पर बैकफुट पर चले जाएं, बाद में फिर आए। वक्ती तौर पर भी चलेंगे तो ईरान को ये बात पता है कि हमने बहुत बड़ी तादाद के अंदर असला बनाना है, चीज़ें बनानी है, वो यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे। प्रॉब्लम इजराइल के लिए सबसे बड़ा ये है कि अगर लेट से मिसाल के तौर पर ये डील हो जाती है और ये जंग बंदी होती है या हथियार और चीज़ें देखकर, तो फिर ईरान के ऊपर जो इन्होंने स्ट्राइक करना है उसका क्या होगा। क्योंकि चंद हफ्ते या चंद महीने आप समझ लें ईरान दुनिया, बल्कि हो सकता है वो दुनिया को ना बताए बगैर क्या दे, जिस तरह इन्होंने काम किया है इजराइल ने। अब आप ये सोचिए इसराइल ने क्या किया है, ये एटमी ताकत है लेकिन दुनिया में इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इन्होंने को टेस्ट करके डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन सबको पता है। इसी तरह हो सकता है ईरान ये सोचे कि भाई हम पर मजीद पाबंदियाँ, वैसे उनको पाबंदियों की परवाह नहीं है, लेकिन वो उनकी एक हिकमत अमली है कि हम सरप्राइज दें या फलाना करें। उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओपनली डिक्लेयर भी कर दें, कुछ भी हो सकता है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक नया फतवा भी जारी करना है इस हवाले से, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर वो रहकर एक सरप्राइज सी चीज़ें रखें और देन उसके बाद वो इनको बता दें कि देखिए हम ताकत बन गए। वैसे पैगाम आप देना चाहें, देखिए जिस तरह इजराइल का सबको बताए, इससे ईरान का भी पता चल जाएगा, तो फिर वो ईरान को मैनेज कैसे करेंगे। आप कुछ भी कहें, फिलहाल इनका इबलीसियत का जो प्लान है वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डील होने के बाद ये सारे अपने घरों को वापस आना शुरू हो गए, आप समझ रहे तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त इनको हो जाएगी। और ये फिर वापस जाना, फिर क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगी, एड आएगी, दुनिया के वर्कर्स आकर काम करेंगे, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा आएगा कि आप यहाँ पर घरों को तामीर करें। ये उसके बाद फिर वो जो उभर कर सामने आएंगे उसका आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मिल के हाथ उठा लिए, एक बंदा जो बड़े ओहदे पर हो और वो कह दे कि ठीक है जी हम ये काम नहीं कर सकते, हम ये लड़ाई नहीं कर सकते, तो समझ लिया आपका खेल ख़त्म है। क्योंकि उसी ने रिपोर्ट आपको देनी है कि फिजिबिलिटी क्या है जीतने की, हमारी फ़ौज नेशनल लेवल पर क्या कर सकती है, मुझे यूनिट्स क्या चाहिए, मुझे बजट कितना चाहिए, हथियार कितने चाहिए। क्योंकि ये सारे के सारे मामला तो उन्होंने हुकूमत के सामने रखने होते हैं। उन्होंने आगे चाहे अमेरिका से बात करनी है, किसी से भी करनी है, हथियार लेना है, भारत से लेना है, किसी से लेना। अब भारत, आप बताइए कि ये अभी सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि भारत ने इनको हथियार देने या नहीं देने, वो भी उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन जो सबसे बड़ा इनके लिए मसला है कि ये तो अभी उन्होंने एक सरप्राइज दिया है, तो जो सरप्राइज उन्होंने देने हैं बाद के अंदर, उनका क्या करना है। यानी ये बात किसी को समझ ही नहीं आ पा रही कि ये तो उन्होंने चले दिखा दिया। अब हो सकता है कि इसराइल, देखिए ये वो चीज़ उन्होंने दिखाई है, हो सकता है ना दिखाते, लड़ाई के वक्त दिखाते, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है आपके पास कि आप इस जंग को ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए जंग जो है वो आप चाहे जो मर्जी कर ले, उसका एंड रिजल्ट क्या निकले। अब लेट से अगर इसराइल यहाँ पर बातचीत कर रहा है, शिकस्त का आगे निकल जाता है, भाई हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए शिकस्त ये है कि उन्होंने कहा था कि हम सारा का सारा मुल्क खा जाएंगे, अगर वो नहीं खा पाए तो ये उनकी शिकस्त है। ये अलग बात है कि उन्होंने 50,000 बंदा भी मार दिया। यहाँ पर शिकस्त हमेशा, जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में गोल्स जो लेकर आया था, वो गोल्स अचीव नहीं हो पाए ना, तो वो शिकस्त होती है।
यहाँ जो सबसे बड़ा सिनेरियो इसराइल के लिए पेश आ रहा है वो इसी तर्ज का है कि इसराइल की पोजीशन यहाँ पर हो गई है वीक। अब ये तमाम चीज़ें देखकर तो उनकी फौज कहती है कि भाई जब वो मिसाइल और चीज़ें आएंगी, यानी वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आप इसको रोक ही नहीं पाएंगे। अब आप जब रोक नहीं पाएंगे तो आयरन डोम नहीं रोक पाएगा, बाकी तमाम चीज़ें नहीं रोक पाएंगे। फिर इनके जो ड्रोन्स है वो जिस तरह उन्होंने आयरन डोम को तबाह किया है, चीज़ों को तबाह किया है, वो एक अलग दास्तान है। अब ये वो असल में वीडियोस और ये तमाम मनाजिर हैं कि उन्होंने कहा भाई हम ये जंग नहीं कर सकते, हमारे बस की बात ही नहीं है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मुज़ाकरात का अमल आप लेकर जाएं। इसराइल अगर ये चीज़ सोच रहा है कि ये चीज़ है तो जो दिखाया नहीं है वो कितना ख़तरनाक सरप्राइज होगा। अब आप सोचें ना कि जब पहले इसराइल की और अमेरिका की रिपोर्ट थी कि 1.5 लाख के करीब इनके पास रॉकेट डिटेक्ट कर लेते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो इन सब ने फिर फैसला ये किया कि अब हमने जो भी बनाना है वो ज़मीन के अंदर बनाना है। ज़ेरे ज़मीन हम करेंगे तो फिर इस सूरत हाल में कोई हमारे खिलाफ इक़दाम नहीं हो सकते। तो ज़ेरे ज़मीन उन्होंने जाकर ये असल में सबसे पहले काम शुरू किया था ईरान की जानिब से। ईरान का असल में जो प्रोग्राम था, चीज़ें थी, आते थे, तबाह करते थे, चले जाते थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी ज़ेरे ज़मीन ये काम करना है, अपने इंजीनियर्स को लगाया, चीज़ें लगाई, सारा कुछ काम किया ज़ेरे ज़मीन। अब उनके पास अंडरग्राउंड में तमाम चीज़ें हैं, मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर है, और उसके अलावा जो उनके न्यूक्लियर वॉर हेड हैं ईरान के, जो मिसाइल हैं वो सारे के सारे ज़ेरे ज़मीन है। इसीलिए कोई इन पर हमला करने को इस वक्त तैयार नहीं होगा, जुर्रत नहीं होगी, क्योंकि वो हमला नाकाम जाएगा। देखिए सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि ये इजराइल के सारे जंगलात को जलाकर राख कर सकते हैं, और वहाँ पर जो फिज़ा का इन्वायरमेंट है वो उसमें इतनी स्मोक हो जाएगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब जानते हैं कि इजराइल ने कितने ज़्यादा दरख्त वहाँ पर लगाए, और दरख्तों के बाद उन्होंने अपनी फ़िज़ा क्लीन की। दुनिया को जो मर्जी करते रहे, अपनी फ़िज़ा उन्होंने बड़ी क्लीन रखी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ा उनके लिए जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि फ़िज़ा सारी की सारी जब यानी ख़राब हो जाएगी, जहर आलूद हो जाएगी, तो जो लोग हमारे मुल्क में रहने वाले हैं वो ऑलरेडी उनके पास दुनिया भर की नेशनैलिटीज़ है, वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और निकल जाएंगे। अब आप ये सोचें कि उनके पास असल में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, इतना वो पैसा लगाते हैं टेक्नोलॉजी पर, ये उनके पास चीज़ें नहीं थी। और सबसे बढ़कर जो सरप्राइज़ है वो सरप्राइज़ अभी किसी को नहीं पता। देखिए 24 से 48 घंटे के बाद यमन के हुसी बताएंगे दुनिया को कि उनके पास क्या सरप्राइज़ था, जो उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाकी है, 3 दिन के बाद हम। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर